Hi everyone, this is Akanksha and is everybody online right now? Hi everyone, this is Akanksha Negi. I am an anchor and motivational speaker. Hi Dujan, hi Mohammed. So today guys we have a very interesting session because we have a session with celebrity tarot reader. Her name is Monica Agarwal and she is a clairvoyant in every sense. बहुत ही कमाल की tarot reader हैं. इसके साथ उन्होंने रेकी तक की भी है. She is a spiritual healer and also a coffee cup reader. Oh my God, इतनी सारी चीजें एक साथ. She is extremely talented and she will be joining us today. तो आपके जितनी भी सारे क्वेश्चंस हैं टैरो से रिलेटेड या आप कुछ टैरो अपने बारे में निकलवाना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड शी विल बी ज्वाइनिंग विद अस सून. We will be having Monica Agarwal very soon with us. She's a celebrity tarot reader and an amazing spiritual teacher. Hi. Hello Monica, how are you? Namaste. Namaste. How are you? I am fine. आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. You're looking gorgeous as always. Thank you so much. And so are you with that purple curtain behind. My favorite color, by the way. Oh, that is my favorite also. So I have got this in my room, and purple is related to spiritual and intuition also. So that's why it's my favorite. Intuition ability also. Yes. तो दोस्तों मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी मोनिका जी से. एंड मोनिका के बारे में मैं क्या बोलूं, शब्द कम पड़ जाते हैं बिकॉज मोनिका इज अ सेलिब्रिटी टैरो रीडर, अ कॉफी कप रीडर, जो कि आई थिंक मेरे लिए एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट है. शी इज ऑल्सो इनटू रेकी, शी इज अ हीलर, शी इज अ स्पिरिचुअल टीचर and she also knows a lot about law of attraction because law of attraction मैं भी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ and मोनिका law of attraction के बारे में भी बहुत कुछ जानती हैं. तो मोनिका थोड़ा सा आप हमें पहले ये बताइए कि आपका क्वारंटीन टाइम कैसे बीत रहा है, आप कैसे बिता रहे हो अपना टाइम? क्वारंटाइन है तो टाइम थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंगली आई हैड अ लिटिल इनफ, बट सिंस माय प्रोफेशन इज I can give consultation people to the online. तो मेरी कंसल्टेशंस ऑनलाइन चल रही है, मेरी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, तो हाफ ऑफ द डे तो मेरा उसमें निकल जाता है. और फर्स्ट हाफ ऑब्वियसली हाउस होल्ड वर्क, एक्सरसाइजिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, उसमें सारा निकल जाता है. तो एक्चुअली देखा जाए तो कब दिन निकल जाता है पता भी नहीं चलता है. एक्चुअली मोनिका जी यही हो रहा है कि लोग मुझे कहते हैं अरे खाली टाइम होगा, बट एक्चुअली खाली टाइम बिल्कुल नहीं है इस वक्त, क्योंकि घर के काम भी करने पड़ रहे हैं एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी जो हैं दैट आल्सो वी हैव टू सी. सो वो चीजों को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. मोनिका आपसे मैं एक और चीज जानना चाहूंगी. यू हैव गॉट अ गुड कर्मा अवार्ड ऑल्सो फ्रॉम जैकी श्रॉफ. सो व्हाट वाज दैट अवार्ड ऑल अबाउट? See, that award was basically I was awarded for my good work in the spiritual field, and it was basically aiming at the clairvoyant psychic readings. So what I do is I am a tarot reader and a coffee cup reader. I do dreams reading also, but I always put my psychic powers into that readings, because without putting the psychic powers, that is something inherited or by birth. So by God gift, I had that certain abilities to read the people aura with and have a little clairvoyance. So I was awarded for that work. Accuracy and psychic abilities. I was reading your profile and 15 plus years of experience you have in tarot reading, in coffee cup, and every modality. I think you have experienced every modality of spirituality. What I would like to say. See, if you talk about my experience in the spiritual field, it is 15 years, but I do have overall it's around more than 24 to 28 years, because I was in corporate. I was in corporate earlier, so I am an MBA from Nasi Monji, and I've devoted my 12-13 years as a general manager HR in various IT companies. Then the soul calling is always one thing which everybody likes to follow. So in 2008 and 2007, I started getting more and more inclined towards this
Art of Living course, and then Reiki, and then tarot cards. Tarot cards used to come in my dreams, and I used to wonder Oh my that, God. what these images are coming in my dreams. So one day I found all these things in on the net. I see some cards. I said, "Oh my God, these are the same things which are coming in my dreams." And then I started founding about that, and then I took a place that I learn it through a proper ways, not by the meanings. And then I find it a guru, and then I learned all these techniques: tarot card, then coffee cup, complete Reiki, then Kundalini Reiki, runes. Because जब इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है ना, फिर वो रुकता नहीं है. तो वो रुकता नहीं है. आपकी जर्नी शुरू हो जाती है, and then it has no end. Learning is no end. So Monica, मुझे ऐसा लगता है कि I don't smoke, I don't drink. तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस चीज का नशा करती हो, तो मैं कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी में एक ऐसा नशा है, एक ऐसा ड्रग एडिक्शन है स्पिरिचुअलिटी का कि इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग इट ना, तो आपको कुछ भी और समझ में नहीं आएगा. उसका एक अलग ही हाल है. जब आपसे लोग पूछे ना, आप बोला मैं पॉजिटिविटी का नशा करती हूँ, और पॉजिटिविटी का नशा करती हूँ, तो उतरता नहीं है. So it's जितने भी मैं स्पिरिचुअल हीलर से बात करती हूँ, मैं टीचर से बात करती हूँ, so it's like they are in their another world. एक उनका एक अलग अपना एक हाई होता है of spirituality, of positivity. तो मोनिका, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी सारी मोडालिटीज आपने एक्सपीरियंस की है, इतना आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो टैरो को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से? बिकॉज एक लेमैन के लिए ये थोड़ा सा अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि टैरो क्या है. पहली बात तो उनको समझ ही नहीं आता बहुत से लोगों को कि टैरो क्या है और वो कैसे काम करता है. एंड थोड़ा सा ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगी दैट एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, डू दे हैव अ कनेक्ट और व्हाट इट इज? सी, टैरो अभी बहुत ज्यादा लोगों में फेमस होता जा रहा है. बहुत सारे लोग जानने लगे हैं कि टैरो क्या है, लेकिन अभी भी जो उसका बेसिक है, यानी कि जो उसका एक्चुअल थीम है, वो लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हर फील्ड में ब्लाइंड फेथ एंड कंटामिनेशन होता है. सो टैरो इज अ गाइडेंस टूल. See, I have a power to read your aura. I have a power to see your aura and see through कि आज आप कैसे मोड में हो, आज आप कैसे झगड़ा करके आए हो, या आज आप खुशी के मोड में हो. और Can you read my aura right now? You are able to read. I know that. ये हर इंसान के अंदर होती है ये पावर, बिलीव मी. अगर आप ऑफिस में वर्क करते हो या आपके जो साथ के लोग हैं, आप उनको पहचान लेते हो कि आज वो कैसे मोड में है, क्योंकि धीरे धीरे हम उनकी एनर्जी के हैबिचुअल होते जाते हैं. सो टैरो जो होते हैं ना, इस तरह के जैसे कार्ड्स होते हैं, अलग अलग कार्ड्स होते हैं. जैसे अभी मेरे हाथ में फेरी कार्ड्स हैं, इसी तरह से टैरो के कार्ड्स होते हैं. उनके अंदर डिवाइन मैसेजेस होते हैं. हर सिंबल, हर कलर, हर एक इमेज या हर चीज का एक सिंबोलॉजी होता है. एंड अगर आपके पास वो साइकिक पावर है, आप एक रीडर हो, तो आपको वो सिंबोलॉजी आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो. कार्ड्स आपसे बातें करते हैं. तो जब आपके सामने कोई बैठा है, या आप फोन पे बात कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो उनके ऑरा का एनर्जी डायरेक्टली कार्ड में वाइब्रेट हो रहा है. और जब मैं वो कार्ड पिक कर रही हूँ या वो खुद पिक कर रहे हैं, तो वो एनर्जी को मैं रीड कर पा रही हूँ. तो करेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है. हमारा पास्ट भी है, हमारा फ्यूचर भी है, हमारा प्रेजेंट भी है. रीड करना आना चाहिए. एंड एज पर एज द एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन प्लैनेट्स. इट टेल्स यू कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा से उसके अकॉर्डिंगली प्लैनेट्स किस चार्ट में बैठे हैं और वो आपको क्या फल देने वाले हैं. टैरो आपको ये बताता है कि आप कर्मा कैसे कर रहे हो. एस्ट्रो ने तो बता दिया कि आपका बेटा स्कॉलर रहेगा, 90% रहेगा, पर वो बेटा पढ़ ही नहीं रहा है, आप उसको सही पेरेंटिंग नहीं दे रहे हो, तो फिर वो कैसा रहेगा. वहाँ टैरो हेल्प करता है कि व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, वेयर आर यू आर गोइंग रॉन्ग. So Monica joining us, so maybe they they might be waiting for the reading also. तो मैं अपने व्यूअर्स से बताना चाहूंगी कि मोनिका सेलिब्रिटी टैरो रीडर हैं, एंड आप अपने कोई भी क्वेश्चंस उनसे पुट अप कर सकते हैं. शी विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस. एंड यहाँ पे लाइव सेशन होने वाला है टैरो का. शी हैज अ मैजिकल कार्ड्स विद हर, तो अपने मैजिकल कार्ड्स लेकर वो आई हैं साथ में. एंड सो व्यूअर्स, आप अपने क्वेश्चंस जो है हमसे पुट अप कर सकते हैं, एंड शी विल बी आंसरिंग. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर फ्यूचर या फिर रिगार्डिंग योर लव लाइफ, 2 ही क्वेश्चंस होते हैं जनरली, मैंने देखा है लोगों की, या तो करियर या लव लाइफ, दोनों में पंगा होता है. आपका करियर हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, कोई भी क्वेश्चन ये टैरो आपको गाइड करता है.
एंड अगर आप इसको एक गाइडेंस टूल की तरह लेंगे, आप एक साइंटिफिक टूल की तरह लेंगे, तो So we have Neha Maggu with us, and Neha Maggu is writing, "Ma'am, can you read for me?" Neha, what is your question? आपका क्वेश्चन क्या है मोनिका से? आप अपना क्वेश्चन पुट अप कीजिए. So we have lot of people joining us. We have Rupali Tiwari. Neha, आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं मोनिका से. आपका क्या क्वेश्चन है? And she'll be answering your question. No, see, I see a Neha question. उसने पूछा था कि I wanted to become tarot reader and can I become a spiritual healer? मेरे लिए ये लाइन ठीक रहेगी या नहीं रहेगी? ये I think पीछे उसने पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन. Neha, if you can hear us, can you? I want to know about my personal and professional life both. So that was some other Neha. ठीक है. She wanted to know about the personal and professional life. Had it been a more clear question, it would have been better. But anyways, I'm taking out 2 cards for her personal and professional life, and let's see what the cards are telling her. Yeah. Personal and professional life. She is undergoing some personal issues in the personal life. उसके कुछ stress चल रहे हैं, कुछ decisions उसको लेने हैं अपनी life में, जिसमें वो थोड़ा confusion में है, और definitely कहीं ना कहीं वो trouble हो रही है. लेकिन ये card उसको बता रहा है कि you have got the inner power. आप अगर अपनी inner power को use करेंगी, heart की सुनिए, दिमाग की बिल्कुल मत सुनिए इस समय, क्योंकि हार्ट आपको सही गाइड कर रहा है. मे बी आप थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा. एंड या दैट्स व्हाट आप कह रहे हो ना कि यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट इन द स्पेशली इन योर लव लाइफ. सो दैट इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग, दैट यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रबल पर्सनल लाइफ. लिसन टू योर हार्ट इज गाइडिंग यू राइट. डोंट यूज टू मच ऑफ योर ब्रेन. एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, आपका प्रोफेशनल टाइम अच्छा आने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पर्सनल लाइफ की वजह से आप उस पर टाइम नहीं दे रहे हो. प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करो, और पर्सनल लाइफ में जो चीज चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए उसको निकाल दो. या मोनिका, ये चीज मैं भी बहुत सारे लोगों से बोलती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और नेहा, आपको मैं ये एज अ फ्रेंड एक एडवाइस देना चाहूंगी, that never concentrate on one particular person. This is what I've learned in spirituality, because you never know that maybe you have a better person waiting for you. So always, when you pray, I tell you Akansha, what happens कि it does not mean कि आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है तो वो इंसान गलत है, सही है. होता क्या है कि कुछ लोग हमारी कर्मा से जुड़े होते हैं, पिछले लाइफ की कर्मा से, और कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं. अगर हम उस चीज को समझ लें और उसको वैसे ही एक्ट करें जैसा हमें करना चाहिए, नॉट आउट ऑफ द इमोशनल क्वेश्चन, तो हम पता चल जाएगा कि कब इसकी एक्सपायरी डेट आ रही है, कब हमें मूव ऑन करना है, और कौन हमारे लिए सही और लॉन्ग रन है. अच्छा, आई एम सीइंग वन क्वेश्चन और दिस इज अगेन नेहा, SHN Neha, yeah, she is asking about spiritual. She want to become a spiritual healer and tarot reader. मैंने बोला था. तो SHN नेहा जो है ये टैरो रीडर बनना चाहती है, सेकेंडरी कैरियर आपकी तरह. She wants to become a tarot reader like you. आ जाओ नेहा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आ जाओ भाई, सीख लो. आपके कार्ड्स तो आपको स्पिरिचुअल की तरफ खींच रहे हैं, तो वेट क्या कर रहे हो. मेरी ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप कोर्सेज चल रहे हैं. टेक द एक्शन एज सून एज यू कैन. बहुत ज्यादा अगर आप सोचोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या फीस है, क्या ये है, तो फिर वो लटका रह जाएगा मामला 2 साल तक. तो अभी टाइम है, ज्वाइन कर लो. सो कार्ड एक्चुअली यू कैन टेक इट एज ऐसा ही होता है. आपका पर्सनल मतलब प्राइमरी कैरियर भी बन सकता है. या ये ये जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है ना हमारा, ये बड़ा कमाल का होता है. हमें फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे काम करना चाहिए. बहुत से लोग सोचने में लग जाते हैं, देन द टाइम गोज बाय. टाइम होता है ना उनका सोल क्वालिटी तो आ जाती है, लेकिन उनका टाइम अभी आता है. देखो, स्पिरिचुअलिटी ना सबकी जर्नी होती है. मेरी जर्नी अलग है, आपकी अलग है. शायद मैं इस अपने पॉइंट तक पहुंची हूँ, शायद आप मेरे से आगे या साथ, मतलब आप रास्ते पे चल रहे हो. मंजिल सबकी है, बट कौन कितना चलना शुरू कर दिया है और कौन कितना पहुंचा है वो डिपेंड करता है. तो अगर उनका टाइम अभी आ गया है, जैसा कार्ड्स में मुझे दिख रहा है, बट वो एक्शन लेने में डर रही हैं, डिले कर रही हैं, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो अपनी जर्नी कब शुरू कर देती है. क्योंकि बस तो सामने खड़ी है, अब आप निकल कर उस पर चढ़ोगे नहीं, बैठोगे नहीं, तो बस निकल जाएगी, फिर दूसरी बस का इंतजार करना पड़ेगा. तो मैं बताना चाहूंगी, व्यूअर्स को बताना चाहूंगी. हेलो मैम. यस, आई एग्री.
हेलो मैम, माय नेम इज नदीम नबी। प्लीज मेरे बारे में कुछ, नदीम क्या जानना चाहते हैं? अपना जो क्वेश्चन है उसको क्लियर पुट अप कीजिए। किस बारे में जानना चाहते हैं? करियर के बारे में? किस करियर के बारे में जानना चाहते हैं? कौन सा करियर? बिकॉज ताकि मोनिका को भी आसानी होगी आपके लिए कार्ड्स निकालने में, एंड बहुत ही पर्टिकुलर फिर आपकी रीडिंग हो जाएगी। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगी, वी हैव अ एस सेलिब्रिटी टैरो रीडर विद अस, मोनिका अग्रवाल, एंड यू कैन जॉइन अस एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड प्लीज बी क्लियर अबाउट योर क्वेश्चंस सो दैट उनको भी समझने में दिक्कत नहीं हो कि कौन सा करियर आपने चूज करना है। कई बार ऐसा होता है ना मोनिका। आराम से अपना नाम और पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, हम यहीं पर हैं, अभी कहीं नहीं भाग रहे हैं। ओके, हेलो। There's a question. Hello, ma'am. I'm Madhusmita. Want to know when I will meet my soulmate. ठीक है, मधुस्मिता के लिए निकाल लेते हैं, उनको अपने सोलमेट का इंतजार है, तो कब वो मिलेंगे? सबको अपने सोलमेट का इंतजार है। yes. या तो सोलमेट का या फिर फाइनेंशियल्स का, दो ही चीजें लाइफ में दो चीजें मेन होती हैं। सो पीमन, थोड़ा सा वेट कीजिए आप, और आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर कर रही है मोनिका लाइव ऑन सेशन टैरो पे। आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर आपके सोलमेट की एंट्री होगी, लेकिन एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि उसके साथ साथ एक और इंसान की एंट्री होगी। आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स का, अपने हार्ट का फॉलो करना है, लेकिन इमोशनल नहीं आना है, क्योंकि जब अक्सर हम कई केसेस में जब सोलमेट की एंट्री हो रही होती है, वहीं एक गलत रिलेशन की भी एंट्री हो रही होती है। तो आपको पहचानना है अपने सोलमेट को। जरूरी नहीं है कि जो सोलमेट है वो बिल्कुल वैसा हो जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हो, ऐसा गुड लुकिंग हो, ये हो, वो सोलमेट हो सकता है, बिल्कुल अपोजिट हो सकता है। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, रिलेशन म्यूचुअल होगा और रिलेशन कमिटेड होगा। ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे उसे पहचानने के लिए। तो Neha Magu has put another question. She is saying that I am into legal field, but I want to enter creative field. So what will be better for me, legal or creative field? Legal or creative field? Yeah, which one will be better for her? Creative. Neha, creative field will be better for you. एक्चुअली होता क्या है ना, अक्सर कुछ फील्ड्स में कई बार टाई अप में झूल जाते हैं, क्योंकि एक फील्ड हमें मॉनेटरी दिखाई होती है और एक फील्ड हमें हमारा पसंद का काम हो सकता है कि लेस मॉनेटरी बेनिफिट दे स्टार्टिंग में, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि आपको कितना जरूरत है, यूनिवर्स वहीं से आपकी अर्निंग शुरू करवा। और नेहा, मैं आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बताना चाहूंगी। मोनिका की खुद की स्टोरी है, मोनिका जी की, कि दैट मोनिका खुद, शी वाज इनटू अ कॉर्पोरेट फील्ड, शी वाज एन एचआर हरसेल्फ, जीएम एचआर, and she left the field and she entered the field of spirituality. So you can take an inspiration from her how to follow your passion. मेरे लिए भी आसान नहीं था। आप जनरल मैनेजर एचआर की पोजीशन, आप इतने साल से बैठे हो, आपके पास एक सिक्योर जॉब है, हाई सैलरी जॉब है, और सडनली आप एक ऐसे फील्ड में आते हो जहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है। आप एक दो क्वेश्चंस भी लोग पूछ लेते हैं फ्रेंड्स वगैरह कि भाई आपने, मतलब लोगों का एक माइंडसेट होता है कि आप पढ़े लिखे हो, आप एमबीए हो, आप वो छोड़ के इसमें क्यों आ रहे हो? तो ना आपको दिस हैज नथिंग टू डू विद पढ़ाई लिखाई, एंड पढ़े लिखे लोग भी इसमें आते हैं बिकॉज वी नीड मोर पीपल जो ब्लाइंड फेथ को हटा के साइंटिफिक फैक्ट्स डाल सके। बट देन आप जो भी चीज चाहते हो वो चीज आपको मिल जाती है, बस पेशेंस की जरूरत होनी चाहिए। सोल कॉलिंग को फॉलो करो और उस पर विश्वास रखो कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो उसके साथ साथ खुद पे भी विश्वास रखो। तो आप जो चीज आपको पसंद होती है आप उसको परस्यू करो। मोनिका, थोड़ा सा आप हमें अपनी सर्विसेज के बारे में भी बता सकते हैं? यू कैन एक्सप्लेन। All right, we have a reply from Neha. Wow, glad to know that. Some choices are difficult to make for sure. Thanks for addressing my question. Yeah, Neha, there are some choices in life which are difficult to make, but you have to make those choices and listen to your heart. इसमें intuition बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपकी intuition क्या कह रही है, आपका दिल क्या कह रहा है, आपको किस चीज में खुशी मिल रही है करने में। Because earlier I was also into a profession. I was also working as an HR, Monica, by the way. Oh, so yeah. both. Yeah. You told me. Great. तो आपने जो बोला मैंने भी वही फील्ड में आ रहे हैं या एचआर वाले दूसरी फील्ड में आ रहे हैं, तो बिल्कुल एंटायरली, मतलब उसमें बेनिफिट होता है बिकॉज वी आर अ गुड एडवाइजर,
बट एंटायरली अगर हम मेटलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल में देखें तो दो अलग अलग चीजें हैं। वो कम्प्लीटली मेटलिस्टिक है, ये कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है। लेकिन सोल कॉलिंग को फॉलो करोगे तो उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। Monica, I would also like to know about your services, what kind of services you provide, and so yeah. I'll tell you, see, I am a founder of Divine Center Partnerverse Spirituality. That's my company name. And we provide the online trainings of the tarot, numerology, runes, coffee cup reading, angel therapy, Reiki, Karuna Reiki, Kundalini Reiki, and many things like angel Reiki and many other services which can be seen from the website, which is all there on my Instagram also. अगर आप मेरे Instagram पे जाएंगे तो वहाँ बैनर्स में वेबसाइट नजर आएगी आपको। मेरा एक YouTube चैनल भी है मोनिका अग्रवाल टैरो रीडर के नाम से। और I follow that channel. हाँ, you are my subscriber, I know that. I follow that channel. yeah. So वो है, उस पे भी मैं बहुत सारी कई बार लोगों को हेल्प करने के लिए फ्री रेमेडीज एंड इन्फॉर्मेशंस में डालती रहती हूँ, कुछ पिक कार्ड रीडिंग्स वगैरह भी डालती रहती हूँ मैं। तो अगर फिलहाल अभी कोरोना टाइम चल रहा है, क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, और लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम कुछ टाइम ये मैनेज करेंगे, बिकॉज अगर लॉकडाउन खुलेगा तो सरकार ने छूट दी है, कोरोना ने छूट नहीं दी है। सो वी विल बी फॉलोइंग ऑल दी व्हाट्सएप ऑनलाइन 1-to-1 वीडियो क्लासेस, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आजकल अक्रॉस द टेबल की जगह अक्रॉस द कैमरा बैठ के भी हम लोग सीख सकते हैं। या एंड इट्स मोर कन्वीनियंट, आप घर में बैठ के सिखा रहे हैं। पार्डन, सॉरी, I said it's more convenient कि you know you are at your own pace, आप घर में हैं and आप घर से ही आप you know you can take the courses. It's convenient for us also, it's convenient for the person also, क्योंकि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली कंफर्ट, एक आपको ट्रैवलिंग टाइम सेव होता है, ठीक है, उसके बाद आपके टाइम का कंफर्ट सेव होता है, क्योंकि मेरे को ट्रैवल नहीं करना, जो मेरे पास सीखने आएगा वो तो आता है। मेरे पास गुड़गांव से स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास संध्या बोएगा ऑल ओवर मॉरिशस से आई थी, वो पूरा कोर्स करके गई थी टैरो वगैरह का, एंड शी इज अ पीपीएस लाइक पार्लियामेंट प्राइवेट सिक्योरिटी, शी इज अ पॉलिटिशियन इन मॉरिशस, जो नेक्स्ट टू एकदम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ही होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शौक के लिए सीखा था। बट अभी जैसे मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, फॉरेन में भी हैं, यहाँ पर भी हैं, तो आप अपने कंफर्ट से सीख सकते हो। पहले मैं व्हाट्सएप कोर्सेज नहीं करती थी, बट सीइंग द लेडीज कंफर्ट, क्योंकि कई लेडीज होती हैं, मान लो बच्चे हैं छोटे, तो वीडियो के लिए भी टाइम सेट करना मुश्किल हो जाता है, तो ठीक है व्हाट्सएप lot of responsibilities going on, आप अपने हिसाब से सीख सकते हो, मैं अपने हिसाब से लेसन्स भेज सकती हूँ। हाँ, लेकिन उसमें मैं थोड़ा फोकस ये करती हूँ कि क्वालिटी हैम्पर ना, जो ऑथेंटिक मेथड्स में यूज करती हूँ वो ना हैम्पर हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि व्हाट्सएप पे कई बार लोगों को ये लगता है कि सिर्फ हम टेक्स्ट पढ़े जा रहे हैं, तो आई यूजुअली सेंड द ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आल्सो wherever it is necessary, the video also, so that they get a complete proper training, and हम try करते हैं कि quality best रहे। Yeah. So there's one more question from Neha only. She's asking you that if you teach chakra alignment, because she would be interested in learning that. हाँ, okay. What is she asking? She's asking that if you teach chakra alignment. Yes. So chakra balancing classes are also there. एंड चक्रा अलाइनमेंट के बारे में मैं ये बता दूं, मैं लोगों को मिथ है, क्योंकि कई लोग चक्रा बैलेंसिंग की क्लासेस अलग से करते हैं। अगर आप रेकी सीखते हो तो उसका भी पार्ट होता है चक्रा अलाइनमेंट। चक्रा अलाइनमेंट मतलब आपके चक्रा में प्रॉपर एनर्जी फ्लो कर रही है, नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, पॉजिटिव एनर्जी का एक प्रॉपर फ्लो है और एक बैलेंस है। तो अगर आप चक्रा अलाइनमेंट के मेडिटेशन सीखना चाहते हैं वो भी है, चक्रा अलाइनमेंट के और तरीके भी है। अगर आप रेकी सीखते हो तो उसमें भी चक्रा अलाइनमेंट आ जाता है, तो तीनों तरीके से आप सीख सकते हो। So there are the online classes available for that. Yeah, so Neha, you can contact her. She has a website also, and ये जो उनका Instagram ID है, इस पे भी उनका वेबसाइट जो है नोट डाउन है, ऊपर जॉट डाउन है, तो आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं मोनिका को। आप लोगों को ना एक चीज बता देती हूँ, मेरा जो Instagram ID है सेलिब्रिटी टैरो रीडर वाला, आई थिंक शाम तक इसका शायद नाम चेंज होगा, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के लिए भी चेंज कर रहे हैं। मैंने इस पर अभी ज्यादा ध्यान दिया नहीं था, तो मे बी वो इन्फॉर्मेशन आप लोग जब क्लिक करेंगे तो सर्च करेंगे तो शायद मिल जाएगा आपको। वो हम जब वीडियोस पोस्ट करेंगे तो उसमें आ जाएगा, इसका यूजर so we have joining us, and मैं अपने विजिटर्स को ये बताना चाहूंगी फिर से that we have celebrity tarot reader with us, Monica. She's a complete clairvoyant and blessed completely with lot of clairvoyance, and बहुत सारे उनके पास साइकिक एबिलिटीज हैं। तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी टैरो रीडिंग के लिए, या फिर चक्रा अलाइनमेंट के लिए, या फिर रेकी के लिए। एंड ऑल्सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं अभी फिलहाल, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये गोल्डन चांस है, फ्री में आंसर दे रही है वो आपका। सो ऑलराइट, वी हैव चांदनी खान विद अस,
एंड शी इज आस्किंग, हेलो मैम, मेरे स्पाउस कैसे होंगे, उनकी प्रोफेशन क्या होगी? Okay, she चांदनी wanted to know खान. about her future partner basically. कि वो कैसे पार्टनर होंगे एंड और किस प्रोफेशन ऑल्सो, शी प्रोफेशन बड़ी स्पेसिफिकली शी इज आस्किंग अबाउट प्रोफेशन क्या होगा. प्रोफेशन सो इम्पोर्टेंट है सो या चांदनी इंसान आपका का क्वेश्चन. नेचर इम्पोर्टेंट है? या सो चांदनी, आपसे आपका जो क्वेश्चन है मोनिका जी आंसर कर रही हैं विद द टैरो. लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, सेंसिटिव होंगे, प्रोफेशनल बेसिकली उनका कम्युनिकेशन का, एडवाइजिंग का, डॉक्टर भी हो सकते हैं, एडवाइजर भी हो सकते हैं, किसी भी ऐसे काम में जहाँ पे कम्युनिकेशन या एडवाइजिंग की जरूरत है, जो लोगों को हेल्प करते हैं. तो हेल्प करने के लिए बहुत सारे प्रोफेशंस हैं. डॉक्टर हो सकते हैं और एडवाइजर्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रोफेशन में हो सकते हैं. बेसिकली आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है क्योंकि उनके मिलने में अभी आपको टाइम है. और ये मैं आपको बोलूंगी कि आप कभी भी अपने पार्टनर को जब चूज करें, उनके लुक्स पे बिल्कुल भी चूज ना करें, बिकॉज आई फील कि आप थोड़ा सा हर कोई, मतलब नॉट आप, हर कोई लुक्स पे थोड़ा जाता है, लेकिन मेरा बिलीव है कि आप उनके कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी को अगर आप चेक करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा. या वेरी गुड एडवाइस मोनिका जी, बिकॉज ये चीज मैंने भी देखी है और आज के टाइम पे ये चीज इतनी क्रूशियल हो चुकी है that all that glitters is not gold. All that glitters is not gold. So you have to look beyond the glitter, what you are seeing in a person. Exactly. Yeah. Because चांदनी आपने चमक, झूठी चमक ही हमेशा अक्सर धोखा दे जाती है ना. Yeah. तो इसलिए बहुत ध्यान से जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करें तो बहुत ध्यान से चूज कीजिए, बिकॉज आपको जिंदगी भर उनके साथ रहना है. तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी आपस में होनी बड़ी जरूरी है, आप दोनों की साथ में अंडरस्टैंडिंग होनी. फील कि लाइफ पार्टनर में और कोई चीजें हो या ना हो, चलो बाकी चीजें तो होती है कि आपको सेटलमेंट देखना है, सब कुछ देखना है, बट आप एक चीज को बिल्कुल ओवरलुक ना करिए कि वो इंसान म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैसे करता है. आप भी उसकी रिस्पेक्ट करें और वो भी रिस्पेक्ट करें. ऐसा नहीं है कि हर जगह लड़के गलत होते हैं, लड़कियां गलत नहीं होती है, या हर जगह लड़कियां गलत होती है, लड़के गलत नहीं होते. बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बिकॉज कई केसेस में गर्ल्स भी थोड़ी डोमिनेटिंग हो जाती हैं. तो आप 4 कदम आप चलें, 4 कदम वो चलें, और आपका रिस्पेक्ट जरूर होगा, क्योंकि अगर आपका आपस में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है ना, तो सब चीजें मैनेज हो जाती है बड़े प्यार से, बिलीव मी. All right. So, guys, you can ask questions. I think एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया, ऊपर चला गया. कोई डाबर कुछ नाम था उनका. आप अपना क्वेश्चन दोबारा पुट अप कर सकते हैं. उन्होंने अपने ब्रदर के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा था. आई थिंक अगेन मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन था. मोनिका, पीपल आर थ्रोइंग क्वेश्चंस ऑन यू रिलेटेड विद लव एंड सोलमेट. ये चीजें कितनी, मतलब मैं देखती हूँ आज का जो हमारा टाइम है ना, इसमें ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है. all of us we need a partner जिसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, जो लविंग हो, जो केयरिंग हो. Everybody needs a partner like that. See, इसको आपने एक तरीके से समझिए, पार्टनर एवरीबडी नीड्स अ लविंग एंड केयरिंग, लेकिन इंसान तो वही है ना जो दुनिया में सब जगह फ्लोट कर रहे हैं. आप एक चीज देखिए कि अगर हम अपने परिवार में अपने लोगों के साथ नहीं बना सकते, जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, ऊर्जा हाई होती थी, कोई दिक्कत होती थी, सब बैठ के सॉर्ट आउट करते थे. अभी न्यूक्लियर फैमिलीज में भी प्रॉब्लम आ रही है. तो अगर आपके घर में आपस की फैमिली मेंबर्स में प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंट्स में, ब्रदर्स में, सिबलिंग्स में, तो आप ये नहीं सोच सकते कि बाहर जाके आपको जो इंसान मिलेगा वो बिल्कुल, कि वो आपको कुछ टाइम के लिए मिल रहा है. जैसे ही आपकी मैरिज होती है वो 24 घंटे के लिए होगा, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी. इसलिए आप सब इंसान तो वही है जो आपस में रोटेट कर रहे हैं. तो पहले आपका अगर कोई इश्यूज हैं या रिलेशनशिप इश्यूज है, पहले आप घर से शुरुआत करिए, घर से एडजस्टमेंट शुरू करिए. अगर आप वहाँ एडजस्ट कर लेंगे तो आप बाहर भी एडजस्ट कर लेंगे. एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल. बेसिकली होता क्या है कि जब एनर्जी हमारे अंदर कम होती है ना, तो हम पेशेंस खो देते हैं, और पेशेंस खो देते हैं तो हमारा टॉलरेंस लेवल एक पर्टिकुलर रिलेशन के लिए कम हो जाता है, दूसरा रिलेशन के लिए ज्यादा हो जाता है. वही चीज बाहर वाला कर रहा है तो हमें बुरा नहीं लगेगा, पर जैसे ही वो बाहर वाला घर का इंसान बन गया है तो फिर वो चीज आनी शुरू हो जाती है कि हमारा टॉलरेंस लेवल उसके लिए कम हो रहा है. तो अगर आप टॉलरेंस लेवल किसी भी रिलेशन के लिए बढ़ाते हैं, तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हैं, अच्छाई बुराई के साथ, तो आपके सारे रिलेशन ब्यूटीफुल होंगे, क्या घर और क्या बाहर. फिर भटकना भी नहीं पड़ेगा, फिर तो राइट लोग ही आपको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करेंगे. So, Monica, we have another question. Rupali Tiwari इनका नाम है, and she's asking, planning to start something on work front. Should I go for business or should I go for a job?
So she's confused that should she open a business or should she go for a job. Her name is Rupali Tiwari. रूपाली का क्वेश्चन, रूपाली का देख लेते हैं कि इनके लिए बिजनेस ठीक रहेगा या ओह शिट, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे कैमरा हिल गया थोड़ा सा. No, no, it's all right. We can still see you. वो ट्राइपॉड पे हाथ लग गया. अच्छा, तो इनके लिए आई फील अगर ये स्मॉल से कुछ घर से शुरू करे ना, इनके लिए बेटर होगा, क्योंकि नौकरी में इनके थोड़ी दिक्कत आ सकती है. इनका अपना काम करने का एक तरीका है. सी नॉट एवरीवन इज मेंट फॉर अ जॉब, बट शी हैज द प्रॉस्पेरिटी एनर्जी इन हरसेल्फ. द ओनली थिंग लैकिंग इज अ कॉन्फिडेंस. इनके अंदर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस या वो चीज आ नहीं पा रही है कि मैं कर सकती हूँ. लेकिन स्मॉल से शुरू करिए, आपका घर से करा हुआ काम ज्यादा फलेगा, यानी कि स्मॉल स्केल बिजनेस. Small scale business. So Rupali, you can start with a small scale business and also start किया the confidence थोड़ा सा high कीजिए because आपका confidence low आ रहा है. अच्छा, we have another question from BBA777. My brother's name is Kiran Kakoti. I want to know उसका शादी कब होगा and love marriage होगा या arrange marriage. Okay. So ये अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं. उनका नाम है किरण, उनके जो भाई हैं. एंड लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज होगा? अरेंज मैरिज होगा. लव मैरिज अगर वो करेंगे तो वो परेशान रहेंगे, तो उनको अरेंज ही करना चाहिए. हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो खुद पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो जितना जल्दी कोर्टशिप पीरियड को कम रखें और जल्दी मैरिज में कन्वर्ट करें. और मैरिज कब होगा? मैरिज में थोड़ी दिक्कत है तो थोड़ा टाइम है. या तो आप उसके लिए कुछ पर्सनल लेके आप कुछ रेमेडी करिए, नहीं तो आप ये बोल सकते हैं उनको, आप अगर हिंदूज में हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप उनको शिव जी का जाप करने के लिए बोल सकते हैं. अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपके रिलीजन में जो भी प्रेयर्स होती हैं, प्रेयर करने को बोल सकते हैं. मतलब कि अगर क्योंकि नाम से पता नहीं चल पा रहा है, तो जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हैं आप उससे रिलेटेड प्रेयर्स कर सकते हैं. अगर वो डेली प्रेयर स्टार्ट करेंगे तो उनका थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा और जल्दी शादी होगी. मोनिका जी, आपसे मैं कॉफी कप के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी. दैट कॉफी कप रीडिंग बड़ा नया कॉन्सेप्ट है. आई हैव बीन वाचिंग कपल ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, बट जानना चाहूंगी बिकॉज हमारे व्यूअर्स को भी पता चले दैट कॉफी कप रीडिंग एक्चुअली होती क्या है और कैसे होती है. हाउ डू यू डू द कॉफी कप रीडिंग? So coffee cup reading is a very interesting sign which has come from Turkey. Yeah. Turkey में ये फॉलो होता था, उसके बाद वो यूरोपियन कंट्रीज में गया एंड देन वो इंडिया में आया. इंडिया में बहुत ही कम ऑथेंटिक कॉफी कप रीडर है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये इतना ज्यादा वो हुआ नहीं है. बहुत ही कम है, एक दो ही है जो ऑथेंटिक है. इफ आई टॉक अबाउट द ऑथेंटिक, बिकॉज नॉन ऑथेंटिक में तो बहुत लोग क्लेम करते हैं काफी चीजों को. कॉफी कप रीडिंग के लिए टर्किश कॉफी जरूरी होती है. टर्किश कॉफी के बिना वो रीडिंग नहीं होती है. अगर कोई आपसे बोले किसी और कॉफी से रीडिंग होती है, वो नहीं होगी. ओनली टर्किश कॉफी इज नीडेड फॉर द कॉफी कप रीडिंग. सो देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कप जिसमें एक स्पेशल तरीके से वो कॉफी बनती है. उसके बाद उसको जब सर्व करते हैं या पिलाया जाता है, उसको पीने का भी एक तरीका है कि कौन से हाथ में आप करो, आपको उसे नीचे नहीं रखना. लेकिन इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बर्डन फील होगा. आप उसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं. जब वो कॉफी खत्म हो जाती है तो जो रीडर होता है, जो कॉफी कप रीडर होता है, अगेन उस कॉफी के अंदर कुछ शेप्स बनते हैं जो रीडर रीड कर सकता है. मे भी कुछ लोगों को वो शेप्स दिख जाते हैं, कुछ को नहीं दिखते, बट जो रीडर होता है वो एग्जैक्ट शेप आपके क्वेश्चन से रिलेटेड रीड कर सकता है. और उसमें जो एनर्जीज ट्रांसफर होती है उसको रीड करके हम प्रेडिक्शंस या काउंसलिंग करते हैं. वाओ, इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा. कॉफी भी बहुत टेस्टी होती है, बिलीव मी. मतलब मेरे पास कुछ लोग कॉफी कप रीडिंग सिर्फ इसलिए लेने आते थे कि उनको वो टेस्टी कॉफी पीनी होती थी, कि तारों ने कॉफी लेनी. आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कॉफी के बड़े दीवाने हैं. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो आई थिंक उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके पास आए. हम लोग आजकल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो अभी मिलना तो है नहीं पॉसिबल, मिलना होता नहीं है. आगे आने वाले कुछ टाइम तक भी. तो क्या है कि जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं उन्होंने टर्किश कॉफी लेके रख लिया है. इंडिया में थोड़ा कम मिलता है, मेरे पास था तो उन्होंने लेके रखा हुआ था, या फिर कहीं से किसी का अरेंज हो जाए, जैसे कोई बाहर गया तो अरेंज हो गया, उनके पास कॉफी है. और बाहर के क्लाइंट्स में सबके पास मिल जाता है, वहाँ पे आराम से टर्किश कॉफी मिलता है. वो कॉफी लेके रख लिया है, तो मैं उनको वीडियो पे बता देती हूँ कैसे बनाना है और कैसे पीना है. उसके बाद वो कप के पिक्चर्स मुझे भेज देते हैं, देन वी कम ऑन द वीडियो एंड डू अ लाइव रीडिंग. ओह वाओ, सो वी आर डूइंग द कॉफी कप रीडिंग आल्सो लाइव. हम ऑनलाइन कर रहे हैं सारा काम.
बहुत Oh इफेक्टिव my होता है। God. That's coffee cup reading actually मैंने YouTube पे एक बार देखा था and I found it very interesting. And that reader she was I think from I think she was from US. I think, yeah, she was not an Indian हाँ reader. नहीं, बाहर है। मैंने भी ये Yeah. सीखा था, मैंने भी एक टर्की लेडी से ही सीखा था। बेसिक मैंने इंडिया में सीखा था, उसके बाद मैंने एक टर्किश लेडी से ही कंप्लीट सीखा था। तो वहाँ पे बाहर ज्यादा प्रचलित है। वहाँ तो उसको मतलब इनफैक्ट टर्की में क्या होता था, जब ये आया था तो वहाँ पे बच्चे आपस में कॉफी के कप से रीड करते थे। जैसे गेम नहीं होता था, हम लोग बचपन में कॉइन्स घुमा रहे हैं कि देखो अभी सोल आ जाएगी, हाँ, जिसको आप कुछ बन रहा है, ओजो बोर्ड डिजाइन बन रहा है ये, हाँ, आई रिमेम्बर. ओजो बोर्ड, दैट इज अ रियल थिंग। बट बचपन में Yeah. खेलते थे ना हम लोग, ऐसे ही वहाँ पे यूज होता था। देन occultists obviously discovered that this is something divine and it should be practiced in a proper manner and with the proper precautions and methods. Yeah. Yeah. So viewers, we are ready to take more questions. अगर आपके कुछ questions है तो आप put up कीजिए and Monica will be answering those questions. She has a magical tarot cards with her and she will be sprinkling the magic dust and reading the cards for you. Yeah, we can see this beautiful These cards. cards are And I ready to love bring this. magic in your life. Yeah, this is not the Rider Waite deck, right? एक Rider deck आता है, मुझे इतना तो पता है tarot cards के बारे में. Rider Waite भी है मेरे पास। I have the That is the basic deck. cards. Yes, yes. This is the basic deck I think in tarot. If you see, the size is big. Yeah, I can see the size. It's So huge. these are the special US edition जो मैंने US से मंगाए थे, giant Rider Yeah, Waite it's cards. huge actually. Yeah. This is These were the, I think This is the they are the basic tarot cards. उसके बाद बहुत सारे tarot cards आए, Actually, angel ये tarot cards. basic है, ये बेसिक है, लेकिन ये सबसे ऑथेंटिक है बिकॉज सबसे पुराने यही थी। अगर आपने इनसे अच्छे से सीखा है, अब वो सिखाने वाले पे डिपेंड करता है। कुछ लोग अलग अलग कोर्सेज चलाते हैं, बट असली तरीका ये होता है कि अगर आपने इनसे सीखा है तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। सी आई हैव इन अनदर डेक, ये टैरो का एक डेक है मेरे पास। देन आई हैव द एडवांस जो पास्ट लाइफ रीडिंग्स में मैं बहुत यूज करती हूँ। Okay. बेस इनका सबका राइटर वेट ही होता है। अगर आपने राइटर वेट से सीखे, फिर जैसे जैसे आप एडवांस होते जाते हो, साइकिक एबिलिटीज आपकी बढ़ती जाती है, आप जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं वो कार्ड्स आप सीख सकते हो, मतलब उसको आप यूज कर सकते हो। सो बेसिकली ये कार्ड्स ने मुझे चूज करा था। टाइम के साथ साथ दीज वर द कार्ड्स हु वर स्टार्टेड कमिंग इन द ड्रीम्स एंड स्टार्टेड अट्रैक्टिंग। फिर मैंने नेट पे सर्च करा, मुझे मिल ही नहीं रहे थे, नाम तो पता नहीं था, पिक्चर्स पर नजर आती थी, ढूंढ ढांड के फिर धीरे धीरे जब मिलनी होती है कोई चीज, तो क्योंकि वो बुला रहे हैं आपको तो वो मिल ही जाती है। So guys, if you have another question for Monica, you can put up the question and she'll be answering. अच्छा, चांदनी खान फिर से क्वेश्चन पूछ रही है that लव मैरिज होगी या अरेंज? लव और अरेंज का बड़ा सबको रहता है यार। लव अरेंज They just want to reconfirm. They want to reconfirm. मतलब जिसे हम अभी देख रहे हैं. some people are so attracted कि लव हो, अरेंज नहीं हो। Yeah. क्यों हो रही है? पार्टनर सही होना चाहिए, लव हो या अरेंज, उससे क्या फर्क पड़ता है? पार्टनर एक्चुअली, हाँ, पार्टनर सही होना चाहिए. तो आपका लव कब अरेंज होगा और आप किसी ट्रैवल के दौरान उस इंसान से मिलेंगे। तो चांदनी ट्रैवल करना अभी भूल जाइए, अभी तो क्वारंटीन चल रहा है. इनका आया भी अगले साल ही था, तो अभी तो हाँ, इनका अगले साल ही आया था, तो आप ट्रैवल के दौरान मिलेंगे. अगले साल ही करेंगी, तभी आपको मिलना तो आप अगले साल ट्रैवल करना शुरू कर दीजिए फटाफट जल्दी जैसे ही क्वारंटीन खुल जाए. भूलना मत कि कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है हमारी लाइफ से। तो ये नहीं कि ट्रैवल में सोलमेट मिलना है तो सबसे ही बात करना शुरू कर दो। अच्छा मोनिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक सोशल क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करना चाहूंगी कोरोना के बारे में. एवरीबडी वांट्स टू नो, जितने भी मैं देख रही हूँ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, सब कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं. तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कोरोना कब जाने वाला है या कब हमें छुट्टी मिलेगी, स्पेशली इंडिया? देखिए, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं, मैं उनको सही गलत नहीं बोलती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं कि भाई अगर ये गुरु की युक्ति आई, ये राहु की युक्ति आई। अब ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी देखा जाए तो 2020 का ईयर है, राहु का साल है। राहु का साल है, होता है अच्छा जाते जाते कब बुरा कर जाए, बुरा जाते जाते कब राजा बना जाए, कुछ नहीं पता। तो ये मैंने शुरू में बोला था कि 2020 शुरू हो रहा है, 2020 तैयार रहिए। उसकी शुरुआत हो गई थी। अब कई लोग कहते हैं कि बिग बॉस में तो हमें पता था कि कौन जीतेगा, वो तो पता था, लेकिन क्या आपको ये पता था कि बिग बॉस एक्सटेंड होगा?
क्या आपको पता था लाइव बिग बॉस की हिस्ट्री में ये चीज होगी कि वो एक्सटेंड करा जा रहा है, वो इतने फेमस हो रहे हैं वहाँ के कैरेक्टर्स, उनका एक अलग ही वो हो रहा है। वो सारा राहु का इफेक्ट वहां से शुरू हो गया था कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारी इंडस्ट्री का, वहां एक इंडिकेशन आनी शुरू हो गई। उसके साथ ये कोरोना का जो आया था कि वायरस आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने वायरस प्रिडिक्ट कर दिया था। वायरस मैंने वायरस नहीं प्रिडिक्ट करा था, बट मैंने कहा था बहुत अनयूजुअल चीजें होंगी। अब वायरस के साथ साथ देखिए कभी अर्थक्वेक आ रहा है, अब कोलकाता में साइक्लोन आ रहा है, अभी तो पूरा साल पड़ा है हमारे साथ। तो कोरोना अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसकी पावर थोड़ी कम हो जाए इस वायरस की, सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते एक नॉर्मल सर्दी खांसी के रूप में हो जाए। लेकिन कोरोना का इफेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन वो भी उनके लिए होगा जिनकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अगर आपकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, आपने अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन नहीं करे हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुल रहा है कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग खाते हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि आप लाइफस्टाइल मेजर मॉडिफिकेशंस करिए। बिकॉज राहु आपको ये बोल रहा है कि आइसोलेशन को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मैं जरिया निकालूंगा आपको आइसोलेट करने का कि भैया या तो अकेला रहना सीख लो, नहीं तो मैं आपको अकेला कर दूंगा, चॉइस आपकी है। तो बेसिकली जब तक 2021 में बुध का इफेक्ट आना शुरू होगा, तो उसके मिड में या उसके 2-3 महीने के बाद चीजें संभलनी शुरू होंगी। अब मेडिसिन एंड वैक्सीन इसका आ भी जाएगा, तो वो कितने लोगों तक पहुंचता है, कैसे लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि नॉर्मल सर्दी खांसी है या कोरोना है, ये डिफिकल्ट होगा। इसीलिए बेटर है कि हम सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपरली करें। मैं कई लोगों को देखती हूँ मास्क तो लगा लेते हैं, बट मास्क के साथ खेलते रहते हैं। उसी मास्क को आप नाक तक लगा रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद आप उसको यहाँ तक ले आए, कोई पर्पस नहीं हुआ। अगर उसमें कोई फिल्ट्रेशन में वायरस आ गया तो वायरस अपने यहाँ टच कर दिया। मास्क का पर्पस क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में जो आ रहा है वो फिल्टर करता है उसको, आपके नाक तक मुंह तक नहीं जाना पड़ता। तो वो मास्क के बाहर अगर उसका जो फिल्ट्रेशन है उसको आप यहाँ तक लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो प्रॉपर मास्क यूज करिए जो घुटन ना महसूस करे, इसलिए कम से कम जहाँ तक जरूरी हो वहीं निकलो। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करो। अब सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग क्या करते हैं कि 6 फीट से 3 फीट, 3 फीट से 1 फीट, धीरे धीरे पास आते जाते हैं। तो ये तो लोगों को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये भी एक तरह से वो है कि नेचर के साथ हमने बहुत खेला है, अब नेचर हमारे साथ खेल रहा है। इट्स लाइक दैट कि ये आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अभी तो केसेस बढ़ रही हैं क्योंकि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले स्टेज में हैं। ये बढ़ते रहेंगे जब तक लोग समझेंगे नहीं, धीरे धीरे। धीरे धीरे। तो मोनिका जी आपको मतलब ये लगता है कि ये जो साल है पूरा, तो मोनिका जी आपको मतलब ये लगता है कि ये जो साल है पूरा ये कोरोना में ही जो है निकल जाएगा एक तरीके से? कोरोना का एक इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा टाइम के साथ, लेकिन और भी चीजें आ सकती है, वाटर बॉर्न डिजीजेस आ सकती है, कुछ और फैक्टर्स आ सकते हैं। तो ये साल हम लोग जितना ये साल एक्चुअली नई टेक्नोलॉजी को अगर हम अप्लाई कर लें, ऑनलाइन चीजों को यूज करना शुरू कर दें,
हम थोड़ा जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, जैसे मान लो आपको क्रॉस में जाना है वो करना है, तो जितना कम से कम, क्योंकि कोरोना का भी जो कॉन्टेक्ट टाइम है, अगर आपने डॉक्टर्स का वीडियो अच्छे से देखा वो 30 मिनट्स का कॉन्टेक्ट है। अगर आपने दोनों ने मास्क लगा रखा है, अगर कोविड पेशेंट में भी और आपने भी, और आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो और 10 मिनट में आप कान से कोई चीज़ लेकर आए हो, अंटिल कि उस चीज़ के ऊपर उसने स्नीज नहीं करा है, तो कोरोना होने के चांसेस कम है। हाँ, आप उसके 1 घंटा तक बैठ के शॉपिंग कर रहे हो, जैसे मॉल्स में हम लोग करते हैं, तो कॉन्टेक्ट टाइम 30 मिनट्स का, तो कॉन्टेक्ट टाइम को लेस करो। अगर लोगों से किसी से मिलना भी है, डिस्टेंस रख के कॉन्टेक्ट टाइम को लेस करो। कोई चीज़ आप किसी से ले रहे हो उसको प्रॉपर सैनिटाइजेशन करो, हाथ को मुंह तक बिल्कुल मत जाने दो जब तक कि वो अच्छे से सैनिटाइज नहीं है। कपड़ों को चेंज करो, ठीक है, स्लीपर्स को यूज मत करो। और वो कई बार सबसे लापरवाही हो जाती है, हम लोगों से भी हो जाती है, क्योंकि हम धीरे धीरे आदी हो रहे हैं, बट हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको लापरवाही को। Yes. So Monica ji, we have another question from Nishika. She wants to know about her future. Nishika, अगर आप थोड़ा स्पेसिफिकली बता दोगे कि आपको फ्यूचर में किस चीज के बारे में जानना है, जॉब के बारे में जानना है फ्यूचर में, या फिर आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हो, थोड़ा स्पेसिफिक अगर आप हो जाओगे तो मोनिका जी के लिए भी आसानी होगी कि वो आपके क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगी। इसलिए स्पेसिफिकली आप बताओ फ्यूचर में क्या चीज आप चाहते हो। मोनिका, मैंने ना यही चीज देखी है मोनिका जी, दैट लोग ना लाइफ में स्पेसिफिक नहीं होते, मतलब उनका एक विजन नहीं होता है, कुछ करना है लाइफ में अच्छा करना है। कहीं ना कहीं वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन को लोग अक्सर ना, उसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे अंधविश्वास फैलाने वाले लोग होते हैं। वो उनको लगता है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन का मतलब भैया अंतर्यामी है, तो बंदा ये भी बता सकता है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, वो क्या होने वाला है। एंड कई बार वो लोग जजिंग फॉर्म में भी आ जाते हैं कि लेट मी सी कि सामने वाला बता पाता है नहीं बता पाता है। तो बेसिकली जो टैरो है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कार्मिक होता है, कंसल्टेशन। हम लोग भी आपके कार्ड्स निकालेंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ में मेंटेन नहीं कर सकते हैं बिना आपकी परमिशन के। तो अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे लिए इजी रहता है। या सो निशिका, यू कैन आस्क क्वेश्चन विद हर। आप थोड़ा स्पेसिफिक पूछ लीजिए कि फ्यूचर में आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हो, करियर में, जॉब के बारे में जानना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, या कोई ऐसा प्रोफेशन है स्पेशल जो आप फॉलो करना चाहते हो, तो आप वो प्रोफेशन भी बता सकते हो हमें यहाँ पे मैसेज करके, सो दैट हम एक स्पेसिफिकली पूछ लें। मोनिका, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी कि आप स्पिरिचुअली क्या एडवाइस करेंगे इस टाइम पे, हम लोग क्या एक ऐसा रूटीन फॉलो करें। अच्छा, उनका आ गया है, एक सेकेंड, निशिका जी का आ गया है क्वेश्चन दैट करियर रिलेटेड एमबीबीएस में एडमिशन। अच्छा, तो एमबीबीएस में एडमिशन चाहते हो आप बेसिकली? ओके, एमबीबीएस में एडमिशन आपकी सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल आप होते हैं। आप उतनी मेहनत ही नहीं कर रही है एमबीबीएस के लिए, दिन रात एक करनी पड़ेगी आपको। माइंड आपका बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है, तो माइंड को फोकस करिए, सब कुछ भूल जाइए, सारा फोकस इन सारी एनर्जी से पढ़ाई पे लगा दीजिए, तो आपका हो जाएगा। तो निशिका, आज से नो व्हाट्सएप, नो एफबी, नो इंस्टाग्राम, आप खाली बैठ के पढ़ाई कीजिए एमबीबीएस के लिए, क्योंकि आसान नहीं है डॉक्टर बनना, इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। चांदनी खान कह रही है मेरी एक विश पूरी होगी। विश बतानी पड़ेगी भाई, पब्लिकली आप नहीं बताना चाहते तो कार्ड्स निकालना मुश्किल है, क्योंकि क्या एक विश क्या हो सकता है, मतलब विश तो बहुत सारी हो सकती है ना, बहुत सारी विशेस होती है हम सबकी, एंड मेरी भी बहुत सारी विश लिस्ट जो है काफी लंबी है मेरी। तो हम मोनिका जी बात कर रहे थे कि हम इस समय क्या कर सकते हैं स्पिरिचुअली। हम क्या कर सकते हैं स्पिरिचुअली? हाँ, स्पिरिचुअली हम क्या कर सकते हैं इस समय। देखो, ऐसा है कि इनर स्ट्रेस ना, कई बार आप कितने भी काम हो, कितना भी एंजॉय कर रहे हो घर में, कई बार डिप्रेशन लोगों को आने लगता है कि मेरे को हमें बाहर जाने को नहीं मिल रहा, हमें लोगों से मिलने को। अब मैंने तो कई बार देखा जो लोग ज्यादातर वैसे भी नहीं मिलते थे, मगर इस टाइम पे उनको क्रेविंग हो रहा है मिलने का, क्योंकि आपको किसी चीज के लिए बंधन में रखा जाता है तो आपका जो माइंड है वो रिवोल्ट करता है। तो अगर आप थोड़ा सा माइंड ट्रेनिंग टेक्निक्स, यानी कि मेडिटेशन 10 मिनट करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, अपने आप को कोई ऐसी हॉबी जो सालों से आपने छोड़ दी है, जो आपको वक्त नहीं मिल रहा है, आप उस हॉबी में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। घर का काम, कई लेडीज कह रही हैं कि मेड्स कब आएंगे, घर का काम नहीं हो रहा, यार दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू डू एन एक्सरसाइज, यू आर सेविंग द जिम मनी। क्योंकि अगर आप जिम में जाते हो और फिर कहते हो कि मैं घर का काम नहीं कर पा रही, तो उस जिम का फायदा है कि आपके उसमें स्टैमिना नहीं है। ठीक है, मैंने तो सिर्फ घर का काम करके वजन लूज कर दिया, जो मैं कभी नहीं कर पा रही थी।
तो आप अपनी हॉबीज को रिवाइव करिए। रीडिंग की हॉबी है तो रीडिंग का करिए, पोइट्री लिखने की आदत है पोइट्री करिए, पेंटिंग का आदत है पेंटिंग करिए, सिलाई का आदत है सिलाई करिए। जो काम आपने बहुत टाइम से नहीं करा वो करिए। बहुत टाइम से आपने अपने कई दोस्तों से बात नहीं करी होगी, कई रिश्तेदारों से बात नहीं करी होगी, कुछ लोगों से डिफरेंसेस होंगे, उन डिफरेंसेस को दूर करिए, उनसे बात करिए, रीच आउट टू देम, यू नो, बहुत काम। वैसे भी तो सारा दिन मोबाइल पे हाथ घुमाते रहते हैं, तो आपका टाइम मिला सारा दिन मोबाइल लेके बैठने का, तो आप मैंने ना 50 तरीकों से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने एक चीज देखी है मोनिका जी, इस टाइम पे मुझे दो तरह के लोग बिल्कुल एकदम डिफरेंस नजर आ रहा है। एक वो लोग हैं जो बहुत क्रिएटिविटी में जा रहे हैं इस वक्त, बिकॉज वो खाली बैठे हैं, तो दे आर कंप्लीटली इनटू क्रिएटिविटी, दे आर थिंकिंग अबाउट न्यू आइडियाज, दे आर थिंकिंग अबाउट न्यू थिंग्स। और एक मैं इस तरह के लोग देख रही हूँ जो खाली नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और उनका पूरा टाइम सिर्फ इस चीज में जा रहा है। तो आई कैन सी अ मेजर डिफरेंस। आप एनर्जी कहाँ यूज कर रहे हैं, एनर्जी कहाँ यूज कर रहे हैं, इस पे बहुत डिपेंड करता है। देखो क्रीप करना तो बहुत आसान होता है, आप डिप्रेशन में जाना भी बहुत आसान होता है। इंसान कौन है जो अपनी सिचुएशन से फाइट, और फिर क्या है यार, जिस घर को बनाने के लिए आप सालों लगा देते हो, आपकी इच्छा होती है मेरा मकान कब बनेगा, मेरे पास पैसे कब आएंगे, अब आज उसी घर से हम दूर जाने को भाग रहे हैं। हम उस मकान को बनाने के लिए जिंदगी लगा देते हैं, और आज उसी मकान वही मकान हमको काटने को दौड़ रहा है, क्योंकि हमें बोल दिया गया कि उस मकान। और वैसे भी देखा जाए पूरी तरह से बंधन में कहाँ है, सोसाइटी वालों ने बोल रखा है कि आप नीचे से सामान लेके चाहिए, तो आपको हवा पानी तो मिल ही रहा है ना, चाहे थोड़ी देर के लिए जा रहे हो। बट आप नेचर का भी तो खेल देखिए ना, हवा शुद्ध है लेकिन मुंह पे मास्क है, उस हवा को ले नहीं सकते हो आप, ठीक है। लोगों के पास वक्त है लेकिन हाथ मिला नहीं सकते हो, मिल नहीं सकते हो। तो नेचर हमें कितना बड़ा लेसन दे रहा है कि जैसे ही हमारा रूटीन शुरू होगा हम फिर से उस हवा को खराब करना शुरू कर देंगे, और फिर एक्चुअली बहुत दिनों से हम मिले नहीं, बहुत दिनों से हम मिले नहीं। आई थिंक इट्स अ बिग लेसन फ्रॉम नेचर दैट बहुत मैनकाइंड ने बहुत प्ले कर लिया है नेचर के साथ, बहुत ज्यादा। ये जो कंक्रीट जंगल हम बनाते चले जा रहे हैं, वी आर कटिंग ट्रीज, ग्रीनरी हम लोग खत्म कर रहे हैं। क्योंकि मोनिका जी आप भी जानते हो कि स्पिरिचुअलिटी में भी ये चीज बोलते हैं कि नेचर के साथ जब आप बैठते हो तो आपकी वाइब्रेशन अपने आप हाई हो जाती है। तो नेचर के साथ बैठना बड़ा जरूरी है हर इंसान का, हर व्यक्ति का, नेचर को महसूस करना। अभी देखिए द पीपल जिनके घर थोड़े अंदर हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग तो मेजॉरिटी सोसाइटीज में रहते हैं, बालकनीज भी होती हैं, आगे का थोड़ा सा एरिया भी होता है, आप उसको सैनिटाइज करके अपने बालकनी में थोड़ा खड़े हो सकते हो। सुबह जब चाय पी रहे हो, एक सुकून की चाय, मतलब आपको एक चाय की प्याली आप ढंग से बैठ के पी रहे हो, वही आपको सुकून दे सकती है। अब ये तो एक साइकोलॉजिकल हमारा फैक्टर हो जाता है कि हमें बाहर जाना है, हमें घर में बैठना है हमारा। हाँ, उन लोगों के बारे में मैं सीरियसली सोचूंगी जिनका काम बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा है, इसकी वजह से काम रुक रहा है और अर्निंग नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली वो टेंशन में होंगे। लेकिन उनके लिए मैं ये बोलूंगी कि टेंशन में रहने से तो वो आना शुरू होगा नहीं, क्योंकि जान उस अर्निंग का आप क्या करोगे जो आपकी जान ही ले जाए। उससे बेटर है कि कुछ क्रिएटिव करो। अगर आपको थोड़ा सा अपना फील्ड चेंज करना पड़ रहा है, ऑनलाइन वर्क करो, कुछ फील्ड चेंज करना पड़ रहा है, तो थोड़ा एक्सप्लोर करो उसको, क्योंकि ये टाइम में आप बीज डाल रहे हो, बाद में उसमें से फल निकलेंगे। तो इंस्टेंट की आप रिजिड माइंड हो रहे हैं और हम क्रीप कर रहे हैं, रो रहे हैं, हम उसके लिए कुछ सॉल्यूशन करें, उसके लिए कोई दिमाग लगाएं, क्रिएटिविटी लगाएं। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है और अचानक आ जाती है। कई बार तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसका हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम कैसे करें, और हमको समझ नहीं आता। सॉल्यूशन चाहिए, इंस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब कि अभी होना चाहिए। जैसे XYZ मैं कुछ आपको सुबह बता रही होंगी या कुछ भी कर रही होंगी, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आप ठंडे दिमाग से उसमें दिमाग लगा के काम करोगे। अगर हम एकदम हाइपर हो जाएंगे तो वो बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता चला जाएगा। यस। तो व्यूअर्स, अर्निंग नहीं हो रहा है, जो लोग थोड़ा सा ओल्ड एज वाले जिनको निकलने के लिए बंद कर दिया, उनको लग रहा है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा आप अपने घर में आपके पेरेंट्स से उनको वीडियो कॉलिंग सिखाइए। अगर आपको करना पड़ता है शेयर, तो अपना मोबाइल शेयर करिए ताकि वो लोग डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि उस एज में डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। आपकी वाइफ है उसके साथ टाइम स्पेंड करिए ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए। ये नहीं कि बस बैठ के उस पर हुक्म चलाते रहो कि ये बना दो, वो बना दो, वो बना दो, और मैदा और सूजी खत्म करते रहो, ठीक है। तो मतलब आप उसके साथ थोड़ा सा हाथ बटा सकते हो, अपने रिलेशन को रिवाइव कर सकते हो, उसको शो कर सकते हो कि जब आपके पास टाइम है आप उसके लिए कितना केयर कर रहे हैं।
और अगर आपका अर्निंग पे इफेक्ट पड़ रहा है तो देखिए इकोनॉमी सबके लिए डाउन हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए या मेरे लिए हो रही है, लेकिन हम कितना क्रिएटिव हो सकते हैं, कितना हम टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं, वो हमें खड़ा रहने में और सरवाइव करने में हेल्प करेगा। आजकल सबसे बड़ी चीज तो मैं देख रही हूँ कि सारे लोग कुक्स बन रहे हैं ज्यादातर। फेसबुक पे रोज ही एक नया पोस्ट होता है, लॉकडाउन केक, एक नया ट्रेंड चला है लॉकडाउन केक, सो पीपल आर केक और इतना मीठा मत खाइए, वो इम्यूनिटी को करेगा, बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, बट देखा देखी सारा टाइम केक मत बेक करते रहो। वो लोग जो डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं कि भाई आपको वो रेसिपी मिल जाए, ताकि अगर आपको वो क्रेविंग हो रही है तो आप ये ना सोचो कि मैं लॉकडाउन में केक या बेकरी सामान नहीं मंगा पा रही हूँ या नहीं खा पा रही हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन स्वीट्स खाते रहो, तो आप इम्यूनिटी को और ज्यादा नुकसान करेगा। So that is something, it is their job, they are doing their job. That does not mean that the whole day you are baking the cake. It's good. अगर आपको शौक है वो करने का तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मीठा लिमिटेड में खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, ज्यादा चलाइए, सबको बांट के खाइए। और हाँ, जितना भी आप हो सकते हैं, देखो एक चीज का मैं थोड़ा सा एक ऐसा सेंसिटिव इशू पे कमेंट करने जा रही हूँ, मे बी कुछ लोग एग्री करेंगे कुछ नहीं करेंगे, बट एक प्रैक्टिकल या स्पिरिचुअल इंसान होने के नाते आप जहाँ पे आपको लगता है लोगों को मदद करना है आप करिए। लोग खाना बांट रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मजदूर है बेचारे, वो लोग जा रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, कई बार ऐसी तस्वीरें आती है जिनको देख के बहुत होता है, बट आप करिए मदद, लेकिन उनकी मदद भी करिए, लेकिन साथ में आप मदद घर से शुरू करिए। अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स को भी जरूर एक बार पूछ लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास रो नहीं सकता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने घर में हमारे अपने नोन में कुछ हो रहा है, और जब आप उनकी मदद कर रहे हैं तो प्लीज प्रिकॉशन प्रॉपर लीजिए, ये ना हो कि आप लापरवाह हो जाएं और कुछ चीज ऐसी ले आए घर में कि कहते हैं ना कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने साथ कुछ ऐसा मत लेके आइए जो आपके लिए प्रॉब्लम होता है। तो मैं कई लोगों को देख रही हूँ खाना वाना बांटते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मास्क उतार देते हैं, नीचे तक ले जाते हैं, एक ही ग्लव्स पहने हुए हैं, उसको बीच में सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। अरे भाई अगर आपको किसी की मदद करना है कर दीजिए, वीडियो मत बनाइए, क्योंकि मोबाइल भी तो आप यूज कर रहे हैं, उस समय कितना सैनिटाइज करना। ये चीज मैंने भी अपने सोशल मीडिया पे डाली थी मोनिका जी, एंड इस चीज को मैंने भी बोला था दैट आप किसी की मदद अगर कर रहे हैं, मैं कई लोगों को देख रही हूँ रोज मदद कर रहे हैं और रोज वीडियो डाल रहे हैं, तो वो रोज डालने का मतलब मुझे कुछ अपलोड करने का कुछ समझ में नहीं आया, बिकॉज कहते हैं ना कि जब आप दान दो एस्पेक्ट है ये, मैं अगेन फिर कह रही हूँ कि सब चीजें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि कुछ लोग सिर्फ मदद थोड़ा सा कर देंगे, उसका वीडियो बनाएंगे दिखाने के लिए। एक होता है कि कुछ लोग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं ये दिखाने के लिए कि भाई हम अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं कि जहाँ पे वीडियो बनाए जा रहे हैं कि हमको अच्छा सामान नहीं दिया गया, हमको अच्छा खाने को नहीं दिया गया, हमको ये ब्रांड नहीं दिया गया, तो कोई तो आपको मदद कर रहा है, आपके लिए सामान बता रहा है, आप कह रहे हो कि हमें कम मिला या ज्यादा मिला, तो कई बार वो बनाना भी जरूरी हो जाता है। बट जो भी कुछ है पर्सन टू पर्सन करिए। मेरा मतलब वीडियो से नहीं है कि वीडियो बनाओ या नहीं बनाओ, मेरा मतलब ये प्रिकॉशन लो। जो मास्क उतार करके आप डाल रहे हो ना कि यहाँ पे मास्क पहना हुआ है, बात करने के लिए आप यहाँ लटका लेते हो, वो मत करो, कंफर्टेबल जिसमें से आपको बात करी जा सके। ग्लव्स है, ग्लव्स पे आप पहन रहे हो, उसी ग्लव्स के साथ आप घूमे जा रहे हो, उनको सैनिटाइज भी नहीं कर रहे हो। ये मैंने लाइव पे कई लोगों को देखा है करते हुए, और फिर उनको बोलो कि आप हाथ धो लीजिए, अरे कुछ नहीं होता, आप ज्यादा बोलते हैं या ज्यादा सोच रहे हैं। ग्लव्स को पहने, कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ग्लव्स एंड मास्क इज अपर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। उस ग्लव्स पे अगर वायरस है फिर आपको मुंह पे हाथ जा रहा है तो फायदा कितना क्या होगा ग्लव्स पहनने। एक्चुअली आप बेसिकली सैनिटाइजेशन पर्पस है कि आप ग्लव्स पहन के जा रहे हैं, उस ग्लव्स को अपने डिस्कार्ड कर दिया और उस ग्लव्स को अपने मुंह पे नहीं रखा। तो हाँ, उन चीजें एक्चुअली पता है कि सब लोग थोड़ा ओवरलुक कर जाते हैं। हाँ, ग्लव्स को एक्चुअली डिस्कार्ड करने के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एंड इनफैक्ट मास्क के लिए भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो वो एक सिंपल वाला मास्क है उसको भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए, या फिर अगर कपड़े का मास्क है तो उसको वॉश करिए घर में आकर, उसको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करिए। मैं अपने यहाँ पर बता रही हूँ, मैंने देखा था हमारे यहाँ नीचे स्टेयर्स पे किसी ने मास्क उतार के ऐसे ही फेंक दिया था। प्लीज उसको प्रॉपर्ली, क्योंकि सिस्टर्स की भी जान खतरे में डाल रहे हैं एक्चुअली। हाँ, हमारा काफी सेशन लंबा हो रहा है, तो हाँ आई थिंक इसको वाइंड अप भी करना पड़ेगा।
या मैं वही बोलना चाह रही थी, बट मैं आपकी व्यू पॉइंट लेना चाह रही थी थोड़ा सा कि स्पिरिचुअली हम कैसे कनेक्ट करें. सो थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड आपने आके यहाँ पे सबके क्वेश्चन के आंसर्स दिए, कॉफी कप रीडिंग के बारे में बताया, टैरो रीडिंग के बारे में बताया, रेकी के बारे में बताया, यहाँ तक कि चक्र अलाइनमेंट तक भी डिस्कस्ड. So thank you so much. This was an amazing conversation with you, and hope to see you soon again. Same here. Same here. You are an amazing person, and I loved having a conversation. Thank you so much, and please stay safe. सब लोगों को मैं बोलूँगी stay safe, stay home, और follow कीजिए सारे rules को जो मोनिका जी ने आपको बताए हैं. Thank you so much, मोनिका, for your time. खुश रहिए. Yeah. खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए. ये नेगेटिविटी बहुत है, उसको कम करिए. बिल्कुल. Thank you so much, Monica, and thank you visitors for giving us your time. Thank you so much. You're welcome.